Sciatica pain main causes are herniated disc, or there is a spur in your bone in the spine. So, and you feel nerve going from here till your toes, till your heel. So when you feel this type of pain which is going from back to feet, that means that is your sciatica nerve has got press, and because sciatica nerve has got press, and because of that only you are feeling sciatica pain. So how to get relief from this sciatica pain? Just I will show you some exercises and you must do that. Now number 1 is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Next, just look at me. See how I'm standing. How I will do. On the toes. On the toes, you have to stand on the toes. Now see, next is you have to stand on your toes. This is Tadasana. Up and up and up and hold. Hold this position for at least whatever time you can. Minimum time should be at least 30 seconds. Up and up. Shant. Number 1 is this Tadasana. You have to walk on your toes, right? You can walk also on Tadasana like this, on your toes only. See, like this. You have to walk on your toes and back on your toes, and stretch your body up and up. This is 1 for sciatica pain. Second is downward dog. Just see how I will do. Here, like this, you have to put this down and down, and raise your leg upward. How much you can raise? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11, and hold. Down. You just lie on this, like this. Now, what you are going to do? You will do both pose. See how will you do both pose? Both hands like this. You have to lie on your stomach and slowly raise this right hand and left leg up and up. Slowly down. Left hand and right leg up and up. Up and up, both leg and both hand. Slowly down. Then we will do Shalabhasana. For this, take the support of your hand on your thighs, up and up, one leg, right leg, and on your chin you have to stay. Hold it. Shant. On this side also, other side. Shalabhasana. That was both pose, and this is Shalabhasana. Slowly down. Up and up. Up and up. Slowly down. Relax. Now we will do Cobra pose. Bhujangasana is also very beneficial
to get relief from sciatica pain. Now see how you will do. Up and hold. Slowly down. Up at least 5 times. Slowly down. Up and hold. Slowly down. आप रिलैक्स करें. आप शिथिल आसन में भी रिलैक्स कर सकते हैं. ये देखिए शिथिल आसन बाईं तरफ, घुटना मुड़ा हुआ, हाथ भी ऐसे. एंड रिलैक्स. कोबरा पोज, शलभासन. और अगर आप कोबरा ये धनुरासन कर सकते हैं तो दी बेस्ट है. ये देखिए दोनों को ऐसे खींचिए. अप एंड अप. बैक में आ जाए. बैक के लिए भी कुछ एक्सरसाइज हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ. देखिए सबसे पहले आप जब बैक में आ गए इस तरीके से, तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे, अगर आप ये वाला कर सकते हैं तो दी बेस्ट है. ये देखिए यहाँ सपोर्ट लगाएं. अप एंड अप. और ऊपर एलिवेट करें, खींचे. अप एंड अप रखें यहाँ पर. अगर आप बेल्ट का सहारा ले लेते हैं तो बहुत बढ़िया है. इस तरीके से करें. ये आपका आ जाएगा सुप्त पादागुष्ठ आसन. सुप्त पादागुष्ठ आसन. ये देखिए इस तरीके से अप एंड अप, अप एंड अप, एंड अप एंड अप. सेम चीज आप दूसरी तरफ से करें. ये देखिए यहां रखें और अप एंड अप. आप स्ट्रेट लेकर जाने की कोशिश करें. सुप्त पादागुष्ठ आसन. ये देखिए यहां रखिए. शांत हो जाए. लंबा गहरा सांस ले. अब हम करने जा रहे हैं सुप्त पिजियन पोज. सुप्त पिजियन पोज कैसे की जाती है? ये देखिए ये आपने उठाया, यहां पर पैर को ऐसे टका दिया. सीधा टिकाने के बाद इसको ऐसे सीधा रखना है, एलिवेट करके. बहुत ज्यादा फिक्स नहीं करना है, बट फिर भी आप एक पोजीशन में रखें. और ये देखिए ये वाला हाथ यहां से अंदर से निकाले, ये वाला हाथ बाहर से निकाले. लॉक करें, प्रेस करें अपनी तरफ, प्रेस करें अपनी तरफ और प्रेस करें. होल्ड करें. तीस सेकेंड्स हाथ में होल्ड करना है. सेम पोजीशन दूसरी तरफ से. ये देखिए ऐसे मोड़े, इसको इस तरीके से मोड़ कर रखे ये वाले पैर को, और इसको एलिवेट करें. और फिर ये देखिए अपनी तरफ प्रेस करें. इससे आप दोहराएं. आपके साइटिका नर्व को पक्का इफेक्ट पड़ेगा और आपको इमीडिएट साइटिका पेन से रिलीफ मिलेगी. ये था सुप्त पिजियन पोज. उसके पहले हमने किया है सुप्त पादागुष्ठ आसन, और अब ये भी किया आपके सामने. तो इनसे बहुत फर्क पड़ेगा. इसके अलावा अगर आप और इजी चाहते हैं तो देखिए 30 डिग्री में एलिवेट करें, 60 डिग्री में एलिवेट करें, होल्ड करें, और फिर 90 डिग्री में. ये तो मैंने आपको बेल्ट के साथ भी बताया. 90 डिग्री अप एंड अप और अप. रखे होल्ड. धीरे धीरे वापस आए. और अगर आप ब्लॉटिंग के लिए साथ में कर अप डाउन ऊपर जाए तो और होल्ड करें, होल्ड करें, होल्ड करें, एंड अप होल्ड, होल्ड एंड होल्ड,
होल्ड करने से और भी बहुत बेनिफिट्स आपको मिलेंगे लेग्स के, तो होल्ड करें। धीरे धीरे वापस आए। अब और भी 1-2 आसन है जो आपको मैं बताने जा रही हूँ। देखिए अपन्ना आसन, ये वैसे भी पेट के लिए भी बहुत अच्छा है और शादी का पेट के लिए भी। ये ऐसे पकड़ो और इसको इस तरीके से आपने गर्दन को नीचे रखना है और लॉक करके इसको आगे लेकर आए और आगे लेके आए, ताकि आपकी छाती का नर्व जो है कंप्रेस्ड हुई है वो ठीक हो जाए, खुल जाए। शांत, लंबा गहरा सांस लें। पवन मुक्त आसन का जो पहला 2 है वो भी छाती पेन में बहुत हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले मैं करवा रही हूँ आपको, इससे पहले भी ब्रिज पोज। तो ब्रिज पोज करेंगे विच विल हेल्प यू टू गेट रिलीफ फ्रॉम छाती का पेन। ये देखिए, ये आपने ब्रिज पोज के भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। ये तो एक फायदा मैं आपको बता रही हूँ। जो लोअर बेली को स्वस्थ रखना है, जो नीचे के पोर्शन है यूट्रस वगैरह, उन सबको सही रखने के लिए भी ब्रिज पोज जरूर करें। ये देखिए, इसको ऐसे से पकड़े, टखनों को पकड़ ले एक बार, टखनों को ऊपर और जितना रेस कर सकते करें। अप एंड अप एंड होल्ड करें। बहुत धीरे धीरे था एंड रिलैक्स। हस्त पादोत्तानासन करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे उठाए, दोनों पैरों को उठा ले, दोनों हाथ दोनों पैर अप एंड अप। धीरे धीरे वापस आए। करेंगे स्पाइन को ट्विस्ट। स्पाइन ट्विस्ट किस तरीके से करना है ये देखिए, ये आपने यहां ले जाना है और इस तरीके, ये गर्दन इधर है और इसको यहां से दबाए, यहां ले जाए, फिर इसको यहां लाए और गर्दन विपरीत दिशा में जैसे मरकट करते हैं उसी के अनुसार ये स्पाइन ट्विस्ट एक्सरसाइज या स्पाइन ट्विस्ट आसन। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसे आप इस तरीके से रखें, यहां रखें और यहां नहीं होगा। ये देखिए, मरकट आसन भी कर सकते हैं। आप ले जाए यहां और गर्दन विपरीत दिशा में, ये भी स्पाइन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल मरकट आसन। धीरे धीरे उठाए, धीरे धीरे वापस, दूसरा पैर उठाए, अप एंड अप ले जाए, बाईं तरफ, दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ। सांस लेते हुए उठाए, सांस छोड़ते हुए हटाओ, दोनों घुटनों को मोड़े, फेविकोल का जोड़ लगा दे, जोड़ दे, ऐसे रखें और यहां इसे भी यहां प्रेस करें। बाएं घुटने से दाएं घुटने से बाएं घुटने को प्रेस करें, प्रेस प्रेस। ये भी छाती का पेन में आपको बहुत बहुत फायदा देगा। अब करेंगे 90-90। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। शांत रहे, लंबा गहरा सांस। करवाने जा रही हूं आपको बोट पोज। ये देखिए, दोनों पैर 60 डिग्री में स्ट्रेट, आगे गए और आगे, ये होल्ड।
धीरे से वापस। करवाने जा रही हूँ पवन मुक्त आसन, ब्लॉटिंग के लिए, इंडाइजेशन के लिए, पेट की गैस को भगाने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए। चलिए बायां दायां पैर मोड़े, लॉक लगा, नाक से घुटनों को छूने की कोशिश। इससे आप शाटिका में भी कर सकते हैं। शाटिका पेन में भी बहुत रिलीफ मिलेगा। ये देखिए, दोनों पैरों को मोड़े, लॉक लगा दे अच्छी तरह से। चलिए 1 डोलन आसन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये देखिए साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा पूरा फोल्ड करिए आप अपने आप इस तरीके से, लंबा गहरा सांस लेना ना भूलें। जो आपको मैंने बताया लेटकर आप बैठकर भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये बेल्ट उठाई, ये पकड़ ली अच्छी तरह से। अब ये भी शाटिका पेन के लिए ये भी एक एक्सरसाइज है। आप पेन आप लेकर आए ऊपर और ऊपर, ऐसे दूसरी वाली नेक को भी ऐसे पकड़ ली। अब पेन अप एंड अप। दोनों को पकड़े, अब दोनों को अच्छी तरह से पकड़े। आप ये पहले फोल्ड करें, फिर अप एंड अप। जहां तक लेकर जा सकते हैं। शांत, लंबा गहरा सांस लें, फील करें प्रभाव को। चलिए बैठ जाइए अर्ध पद्मासन में या पूर्ण पद्मासन में, इस तरीके से बैठे। लंबा गहरा सांस जरूर ले। कराने जा रही हूं आपको अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करेंगे। सबसे पहले प्राणायाम में हम जो भी हैं आपके सभी प्राणायाम की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले मूल बंद, डीप ब्रीदिंग। हाउ टू डू डीप ब्रीदिंग, इस तरीके से आप चिन्ह मुद्रा में रख ले दोनों हाथों को, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। लंबा गहरा सांस लेंगे, सांस जाएगा यहां से होते हुए पूरा मूल तक, पेट के नीचे वाले भाग तक। फिर धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना है। करना कैसा है देखिए। सबसे पहले आपने सांस जब लेना है तो कम से कम अपने मन में 10 गिनिए और बाद में सांस पेट को फुलाते जाएं और फिर होल्ड रखें। कम से कम 10 तक भी गिनिए। यहाँ आप पहले 20 गिनिए और फिर 10 गिनिए। इसका ही रूल रखते हैं 2:1। जब आप सांस ले रहे हैं 20 गिने, जब आप होल्ड करते हैं 10 गिने, जब आप छोड़ते हैं सांस को तब भी 20 गिने, और जब छोड़ने के बाद इवैक्यूएट करके, खाली करके, वैक्यूम क्रिएट करके आपने होल्ड रखना है, वो भी कम से कम 10 गिने। तो लेट अस स्टार्ट, एटलीस्ट लेट अस डू 10।
डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। और 10 एक्सरसाइज तो नहीं कहेंगे हम इसे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही कहेंगे, सॉरी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर व्हाट, फॉर डीप ब्रीदिंग प्राणायाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब सांस छोड़े तो इसको पेट को जो है वो रीढ़ की हड्डी के साथ सटा दें, इस तरीके से। फिर से सांस लें, पेट फुलाएं, 20 गिने मन में। उल्टा मत कीजिएगा, सांस लेते हुए आपने फुलाना है और सांस छोड़ते हुए पिचकाना है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। और आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, आपको इसका बहुत ही ज्यादा लाभ है। श्वास की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, श्वसन नली से सारी ठीक होगी, पेट आपका बिल्कुल स्वस्थ होगा। तो ये आपने 10 कर लिए डीप ब्रीदिंग। उसके बाद हम करेंगे अग्निसार। घुटनों में हाथ, पेट को आगे पीछे, सांस नहीं लेना आपने, ब्रीथ आउट एंड देन स्टार्ट डूइंग फॉरवर्ड बैकवर्ड, फुलाएंगे, पिचकाएंगे। करें स्टार्ट। सांस ले बिना, लंबा गहरा सांस ले लीजिए, सांस से बाहर। अब स्टार्ट हो जाए। शांत। चलिए, यही चीज जो भी हमने किया, अग्निसार किया, इसको दोबारा आप दोहरा सकते हैं। अब करेंगे नौली क्रिया। पेट को घुमाएंगे क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, बिना सांस लिए, सांसें बाहर, लंबा गहरा सांस, सांसें बाहर, और शुरू हो जाए क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। शांत हो जाए। नौली क्रिया आपके पेट की सफाई कर देती है, पूरे पेट की सफाई हो जाती है, शुद्धि हो जाती है आपकी। जो अंदर की जो नाड़ियां हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सबकी शुद्धि होती है। नौली क्रिया में स्पेशल ध्यान ये रखें कि पहले तो आप किसी की सुपरविजन में करें, और दूसरी बार जब आपको पता चल जाए तो आप अपने आप कीजिए। इससे क्या होगा, आपके पेट में जठारनी पैदा होगी। जो भी आप खाते हैं उसको पाचन करने में वो आपकी हेल्प करती है, पाचन शक्ति आपकी बढ़ती है। तो अभी हमने किया अग्निसार और नौली क्रिया। अब हम करेंगे शरीर को ठंडा करने के लिए चंद्रभेदी। देखिए, इस तरीके से लगाएं चंद्रभेदी। आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, और गर्मियों में वैसे भी कूलिंग के लिए। सर्दियों में आप सूर्यभेदी कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आपने क्या करना है, अभी भी बहुत गर्मी नहीं आई है, नवंबर का महीना चल रहा है, स्टिल देयर इज टू मच हॉट। व्हाई? बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। फिर भी आपको गर्मी लगती है, आप थोड़े से एक्सरसाइज करें तो आपको गर्मी लगने लग जाती है। और वैसे भी जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें चंद्रभेदी ही करना है। तो ये देखिए, ऐसे रखा, इसको इस तरीके से मुद्रा बनाई आपने, 2 उंगलियां बेंड कर ली, और फिर हम ये जो उंगली है इंडेक्स फिंगर, इससे इसका हेल्प करेंगे।
बाएं से लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, फिर से बाएं से लेना और दाएं से छोड़ना। हर बार आपने बाएं से लेकर सांस को दाएं से ही छोड़ना है। तो इसका ध्यान रखें और आंखें बंद और भगवान का नाम अंदर ही अंदर लीजिए। समर्पण करें भगवान को, समर्पण टू गॉड। हल्का गहरा सांस लेना है, लेकिन प्रेशर नहीं डालना। हर बार बाएं से लें, दाएं से छोड़ें। दोनों में टाइम एक जैसा लगाएं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। चंद्रभेदी आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है, आपके ब्रेन के लिए बहुत फायदेमंद है। आजकल की दुनिया में बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, बहुत कंपटीशन है। स्ट्रेस को यही काम करेगा, आपके माइंड को यही काम करेगा। तो आप जरूर कीजिए चंद्रभेदी नियमित तौर से। अगर आप योगा नियमित तौर से नहीं करेंगे तो एक दिन करने से आपको इसका कोई खास फायदा नहीं होगा, बट यू हैव टू स्टार्ट समडे। तो किसी ना किसी दिन जरूर स्टार्ट कीजिए, कल के ऊपर मत छोड़िए। हम हमेशा कहते हैं कल करेंगे, फिर करेंगे, ये एक्सक्यूज है, वो एक्सक्यूज है। कोई एक्सक्यूज नहीं होती इफ योर विल पावर इज स्ट्रॉन्ग। तो योगा से ही सब होगा, तो क्यों ना हम योगा करें। लंबा गहरा सांस लें। आपने अभी किया चंद्रभेदी, करेंगे कपाल भारती। कपाल भारती से भी आपका पेट बहुत कम हो सकता है, आपकी ओबेसिटी से आपको छुटकारा मिल सकता है, और वो भी आप बैठे बैठे आपने करना है। इसमें कोई वो ताम झाम की जरूरत नहीं है आपको। जस्ट बैठे, कोई भी मैट लीजिए, कुछ भी लीजिए, कहीं भी बैठिए। कोई स्पेशल रूम की जरूरत नहीं, कोई स्पेशल जगह की जरूरत नहीं, कहीं भी बैठिए आप। ये देखिए, यहाँ रखे घुटने और लंबा गहरा सांस लीजिए, और फिर सांस को छोड़ना हमने झटके के साथ, लेकिन झटका मॉडरेट उसमें रखना है, और झटके के साथ आपने सांस को छोड़ते जाना है और पेट को आगे पीछे करना है। ये हम 3 स्लॉट में करेंगे, ठीक है जी। एक बार में आप 31 कीजिए, 41 कीजिए, काउंट कीजिए मन ही मन। तो लेट अस स्टार्ट। सांस छोड़ दे, और अब झटके से सांस छोड़ेंगे। शुरू में आपने बड़ा लंबा स्टॉप रखना है। धीरे से सांस, धीरे से अपनी सांस को बाहर निकालना है, और पेट को भी जोर से झटका नहीं मारना है, ठीक है जी। तो इससे तो बहुत सारे फायदे, आपके माथे में चमक आ, वो तो है ही है। उसके अलावा आपका पेट की जो आंतरिक सफाई है वो उससे होगी। अब सेकंड स्लॉट करेंगे। लंबा गहरा सांस लीजिए, सांस को छोड़ेंगे झटके से।
शांत। तीसरा स्लॉट, लास्ट स्लॉट, लंबा गहरा सांस। सांस छोड़ेंगे झटके से। शांत। 61 मैंने एक टाइम पर किए हैं और 3 स्लॉट लगाए। अब अपने हम लगाएंगे त्रिबंध। त्रिबंध में जलंधर बंध, मूल बंध, उड़ान बंध। उड़ान बंध, जलंधर बंध एंड मूल बंध। और सांस को छोड़कर आपने सांस को होल्ड करके रखना है। तो चलिए त्रिबंध लगाएंगे। उड़ान बंध, जलंधर बंध, मूल बंध। स्टार्ट। अपने होल्ड करने की जो सांस को होल्ड करने की जो टाइम है उसको आपने धीरे धीरे बढ़ाना है प्रैक्टिस के साथ। और ये चिन्ह को कंठकूप के साथ लगाना है। अब हम भरे हुए सांस में करेंगे। सांस भरकर अंदर होल्ड करें और बंद लगा दें। सांस नहीं लेना। फिर आपने जितनी आप में कैपेसिटी है जितने टाइम तक आप होल्ड कर सकते हैं। लंबा गहरा सांस। शांत। लंबा गहरा सांस लीजिए कि पूरी श्वसन नली की सफाई होती है। जैसे हम एक नाले में अगर कचरा फंस जाता है तो वहां पर एक कपड़ा लगा देते हैं और फिर वो कपड़ा जब हम झटके से खोलते हैं तो पानी एकदम जाने लगता है। ऐसे हमारा है, हमारी श्वसन नली की बिल्कुल सफाई हो जाती है। लंबा गहरा सांस। फील करें प्रभाव को जो भी आप करके हटे हैं। हर प्राणायाम के बाद आपने होल्ड करना है और फील करना है उसके इफेक्ट को आंखें बंद करके। हर के बाद थोड़ा सा विश्राम। लंबे गहरे सांस लें। लंबे गहरे सांस लेना बहुत ही आवश्यक हर प्राणायाम के लिए। तो अब हम करेंगे आंखों का एक्सरसाइज। देखिए दोनों अंगूठे इस तरीके से बीच में सेंटर में, और सेंटर में आंखें रखिए फिर दाएं तरफ देखिए। सेंटर में आंखें फिर बाएं करते जाए। गर्दन नहीं मोड़नी आपने। दूर 2 पॉइंट बना ले। दूर पास, पास दूर, पास दूर, पास। देखते जाएं। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। आपका वैसे भी हो गया था। नाक को सेंटर समझ के तिरछा देखिए। अंगूठे को सामने लेकर जाएं। अप डाउन, अप डाउन। आंखें अप डाउन, अप। दाएं बाएं, अंगूठे के दाएं बाएं देखिए। नाक को तिरछा समझ कर देखिए। अब राउंड लगाएंगे। अंगूठे के टिप को लगातार देखिए। 6 राउंड। आंखों के लिए बहुत बेहतरीन। रोज एक्सरसाइज करें एंटी क्लॉकवाइज।
आपकी आंखों की दृष्टि बढ़ेगी, आपका चश्मा उतरेगा। अगर चश्मा लगा हुआ है तो उसका नंबर कम से कम स्टेबल हो जाएगा, और कुछ नहीं। तो इसके अलावा भी आप घास में चला करें, हरे हरे घास में सुबह सुबह चले, उगते हुए सूरज को देखें। उगते हुए सूरज को देखने से भी आपका बहुत ही फायदा मिलता है आपकी दृष्टि को। ये देखिए, इस तरफ ले जाएं, आंखों की कोर से देखें, गर्दन मत मोड़ें, पास में लाकर होल्ड करें और लगातार अंगूठे के टिप को देखते रहें। दूसरा अंगूठा सामने, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। नाक को सेंटर समझ के तिरछा दें, गोल चक्कर लगाएं, 1 क्लॉकवाइज। अपोजिट, सामने लेकर जाएं और बैक एंड में, और धीरे धीरे वापस लेकर सामने और पास में लाकर होल्ड, दोनों 1। धीरे धीरे फॉरवर्ड बैकवर्ड, आपके शोल्डर के लिए भी बहुत फायदेमंद और आंखों के लिए तो फायदेमंद। पास में लाकर होल्ड करें। अब राउंड लगाएं, 1 2 3। लगातार अंगूठे के टिप को देखते जाएं। योग एक तपस्या है, इसे आप नियमित तौर में करेंगे तो आपको 100% इसका फायदा मिलेगा, और बहुत फायदा मिलेगा। आप मेरी उम्र में 66 प्लस की उम्र में आप हर मेडिसिन से दूर रह सकते हैं। कोई डायबिटीज नहीं, कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं, नो नथिंग। शाम, लंबा गहरा सांस लीजिए, आंखों को इस तरीके से कप बनाकर उंगलियों से ऐसे खोल लें, यहाँ अंगूठा और ऐसे फिक्स कर दें। अब अप डाउन, दाएं बाएं रोटेट करें क्लॉकवाइज आंखों को। अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज। आंखों को झपके, जल्दी जल्दी आंखों को भींचे, दूषित पानी बाहर निकालें। एक आंख को बंद करके दूसरी आंख ब्लिंक करें, दूसरी आंख को बंद करके ब्लिंक करें, पामिंग करें। जब भी आप मोबाइल देखते देखते थक जाएं तो पामिंग जरूर करें आंखों की। आंखों को 20 मिनट के बाद आप एक रूल बना लीजिए, 20 मिनट फोन देखने के बाद आपने बाहर देखना है, आपने इस तरीके से पामिंग करनी। बच्चों को भी सिखाएं ताकि उन्हें चश्मा ना लगे, अगर चश्मा लगा है तो उतर जाए। साथ में आप इलायची, बादाम और मिश्री को एक बराबर क्वांटिटी में लेकर आप उसका चूरन बना सकते हैं पीस कर, और उसे रोज 1 चम्मच दीजिए दूध के साथ बच्चे को। तो देखिए, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। अमरूद खिलाएं, हरी सब्जियां खिलाएं। अब हम करेंगे आंखों की एक्सरसाइज में ये वाली मसाज रह गई आपकी। ये देखिए, 3 उंगलियों की मसाज मैं इसे कहती हूँ। बीच वाली, सेंटर वाली यहाँ पर, और 2 उंगलियां आंखों के ऊपर हल्का हल्का क्लॉकवाइज घुमाएं। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। ये वैसे भी आपके फेस के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है आपके। और ये 2 उंगलियां लेकर मसाज करें आंखों के आसपास, और फिर अपोजिट, और फिर देखिए हल्की हल्की टैपिंग करिए, हल्की हल्की टैपिंग आंखों के आसपास, आंखों के आसपास गोल गोल, यहाँ भी गोल गोल। जितनी मसाज हल्की हल्की कर सकते हैं जरूर करें। आंखों के ऊपर हल्का हल्का पलकों को प्रेस करें, एक एक उंगलियों से बिल्कुल कोमलता से। ये काम सारे कोमलता से करने वाले हैं। हल्की मसाज, हल्की मसाज, हल्की मसाज, और हल्का हल्का टैपिंग ऊपर, आंखों के ऊपर और इधर। देखिए ये कॉर्नर है ना, यहाँ भी हल्की हल्की मसाज गोल गोल, और फिर आईब्रो को ऊपर उठाएं। ये अब फेशियल योगा शुरू। यहाँ मसाज करें, ये कनपट्टियों में मसाज, प्रेस, कनपट्टियों में मसाज, प्रेस, और नोज की मसाज, चिन, माउथ के आसपास, लिप्स के आसपास मसाज, और फिर चिक्स की मसाज। गोल 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 करें,
और फिर लिफ्ट करें, फेस को लिफ्ट करें, लिफ्ट लिफ्ट। कानों की मसाज, कानों को ऊपर नीचे खींचें और दोनों को मिलाएं। ये करने से आप हमेशा यंग रहेंगे। ये वाली नर्व को जरूर मसाज करें और हल्का हल्का प्रेस करें। फेस को लिफ्ट और मुट्ठियों से मसाज। नीचे से ऊपर, हमेशा मसाज का जो है वो नीचे से ऊपर करें। मसाज, टैपिंग करें हल्का हल्का फेस को। ब्लड सर्कुलेशन आगा, फेस को लंबा गहरा सांस लें, फुलाए मुख को। खाएं हवा को। हवा दाएं बाएं। इसकी कपोल शक्ति। नाक से हवा छोड़नी, मुंह को फैलाकर नाक को बंद करके ऊपर लेकर जाना। ऊपर तो जरूरी नहीं है, छोड़ दीजिए। नाक से हवा बाहर निकालनी, मुंह में हवा भरकर। अब जबड़े को आगे पीछे करें, मुंह को पाउच बनाकर ऊपर। आपको डबल चिन नहीं, होल्ड करें थोड़ा सा। अब जीवा को घुमाएं, अपोजिट। फिश पोज बनाएं। ए ई आई ओ यू वी, ए ई आई ओ यू वी। नाक को बंद करके कान से हवा निकालें। शांत, लंबा गहरा सांस लें। पैरों को खोलें। काफी देर आपने पैरों को रखा है, पैरों को खोलें। अप डाउन अप डाउन अप डाउन, साइडवेज, अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते जाएं दंडासन में बैठकर। फिर से बैठे किसी भी आसन में। अनुलोम विलोम करेंगे। बाएं से लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, बाएं से। आप विश्वास कीजिए, अनुलोम विलोम ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, नाक की सभी बीमारियों के लिए बहुत ही, आपके लंग्स के लिए बहुत ही फायदेमंद। बहुत सारे योगी को मैंने देखा है कि कितनी भी उनको बीमारी हो, उन्होंने अनुलोम विलोम से ही ठीक की। आप तो विश्वास नहीं करेंगे, आपके शरीर में कोई गांठें हैं वो भी अनुलोम विलोम से खुल जाती हैं। तो ये देखिए, ऐसे बाएं से लीजिए, दाएं से, दाएं से लीजिए, बाएं। श्रद्धा के साथ कीजिए। और ये जो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखिए, गर्दन सीधी।
शांत। अनुलोम विलोम बहुत ही फायदेमंद, आपकी नाक से संबंधित, दमा से संबंधित, अस्थमा से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, अनुलोम विलोम से ठीक होगी। अब मैं आपको कराने जा रही हूँ भ्रामरी। भ्रामरी जो आपकी ग्रास्पिंग पावर को बढ़ाती है, बच्चों को जरूर कराएं। फोकस लगता है, स्टडी में फोकस लगता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमें डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो जाती है, हम चीजें भूलने लगते हैं। तो उसे याद करने के लिए आप रोज करें भ्रामरी। अब भ्रामरी में आपने क्या करना है, इस तरीके से शिरोमणि पोज बनानी है और जीवा को तालू के साथ ऐसे मोड़ कर लगा देना है और भवरे की गुंजन से म का उच्चारण करना है। तो करिए, आइए करिए मेरे साथ। बहुत धीरे धीरे आंखें खोलिए। माँ का उच्चारण 5 बार आप करना है, बीच में आप सांस ले सकते हैं। एक ही बार माँ बहुत लंबे समय तक, अगर वैसे तो लंबे समय तक करने की कोशिश कर सकते हैं। लंबा गहरा सांस 5 बार तो कम से कम जरूर कीजिए। लंबा गहरा सांस लीजिए। अब हम करेंगे क्लोजिंग प्रेयर। तो क्लोजिंग प्रेयर के लिए आप शुरू हो जाए मेरे साथ। 3 बार ओम का जाप, ओम का उच्चारण, ओम की चैंटिंग का भी बहुत प्रभाव पड़ता है आप पर। तो इस तरीके से रखें, 3 बार ओम का जाप और फिर क्लोजिंग प्रेयर। ओम अस्तो मा सद्गम्य, ओम तमसो मा ज्योतिगम्य, ओम मृत्युर्मा मृतगम्य। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांति भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ता सुखिना भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुक्मिव वन्दना, मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम, शांति पृथ्वी, शांतिरापा, शांति औषधया, शांति वनस्पतया, शांति विश्वदेवा, शांति ब्रह्मा, शांति सर्वगम, शांति शांतिरेवा, शांति श्यामा, शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथों को गोद में रख लें, ध्यान लगाएं, फोकस ऑन द सेंटर ऑफ योर फॉरहेड, जहां पर हमेशा दिव्य ज्योत जग रही है, उस दिव्य ज्योत को देखने का प्रयास। फार्मिंग करेंगे।
पूरे शरीर में धारण करें, पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा पैदा करें और फुल बॉडी में धारण करें। लंबे गहरे सांस, पैरों को खोलें। टैपिंग करना सिखाती हूँ आपको। टैपिंग कैसे करते हैं? टैपिंग करने से एक तो ब्लड सर्कुलेशन होता है, आपकी नर्व्स खुलती हैं, और ब्लड सर्कुलेशन, नर्व्स खुलने से आपका जो है पूरे शरीर का टोन अप हो जाता है। ये देखिए, टैपिंग कीजिए जरूर ब्लड सर्कुलेशन के लिए, गांठें खोलने के लिए, कहीं कोई गांठ नहीं होगी आपकी बॉडी में। ये तलवों को, पैरों के तलवों को, कितने सारे पॉइंट्स हैं, हमें नहीं पता कौन सा पॉइंट किसका है, वो सारी स्टडी मत कीजिए, आप बस सारे पैरों को दबाइए। यहाँ पर कहीं लीवर का पॉइंट, कोई किडनी का पॉइंट, कोई ब्रेन का पॉइंट, सबको दबा दीजिए। दबाएं, मारें, टैपिंग करें। ये तो आप बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं, कितना इजी है। One, two, three, four, five, six. 3, 4, 5. स्पेशली वुमेन्स को यहाँ पर तो जरूर करना चाहिए ताकि कोई गांठ ना बने। यहाँ सारे नर्व्स चलने लगेंगे, ब्लड सर्कुलेशन होने लगेगा, कोई ब्लॉकेज है ठीक होगा। योगा कीजिए, योगा से सब कुछ होगा। 1, टेम्पर करें, दूसरी तरफ भी टेम्पर करें। फेस की टैपिंग, हेड की टैपिंग, हाथों की टैपिंग, बाजुओं की टैपिंग। 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. सारी टैपिंग करने के बाद अब हम करेंगे हंसी योग। देखिए, हंसना बहुत जरूरी है। हंसना इसलिए जरूरी है कि अगर आप हंसते हैं तो आपकी पूरी जो शरीर है वो ओपन होता है, आपके पूरे शरीर में उसका प्रभाव पड़ता है। हैप्पी हार्मोन्स पैदा होते हैं जो कि आपको खुश रखते हैं, और जितना आप खुश रहेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए हंसी करेंगे। देखिए, सबसे पहले हा 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 पेट से हंसी निकलनी चाहिए। फील करें, हंसी के प्रभाव को फील करें, आंखें बंद करके इस तरीके से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरती माता को प्रणाम, वायु देवता, जल देवता, सूर्य देवता, सभी को हमारी सादर नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। कमेंट जो आप देंगे उनको मैं पढ़ूंगी और उसके अनुसार ही मैं इंप्रूवमेंट करूंगी, और इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू।